एक सप्लीमेंट है, एक ज़ाइगोमेटिक है, लैक्रिमल, लिंगर एंड एथनॉल। क्लियर है यहाँ तक? Good morning, students. Hello. ठीक है, अभी मैंने आप लोगों की अटेंडेंस लगा है, ठीक है। क्या अंदर कोई क्वेश्चन? Good morning, Vita. Vita, please call others. Thank you. Thank you. Thank you. Nafisa, before calling others, please let me know if you can hear me. Aruj Aslam, good morning, beta. Beta, can you all hear me? Don't hear me on mic. Yeah. Okay. Yes, we can hear you. Thank you, Vita. अच्छा बाकी इनको भी ब्लॉक करके वो हम अपना शुरू करें। कल भी बीच में रह गया था। चलो आ जाओ जल्दी से सारे। तो मैं जो लोग पेरेंट्स जो लोग एब्सेंट हैं, तो उनके नाम का
अभी तक हमें सही लगी के नाम नहीं है अगर मुझसे कुछ अल्हम्दा आशा इमरान रीना स्कंदर लुबना यूसुफ मलाइका नादिर महक नदीम महरून निसा इलाही रवी मुकद्दस परवीन निम्रा महरीन नुसरत शेख नाज़ी नाज़िया कुमार फातिमा समाना इम्तियाज सना शिफा एहसन मोहम्मद मजनू आयशा सुन्नी अंजुम Good morning, beta. सना कमल आपके टाइम स्टार्ट ना शुरू आपकी भी करती है लुबना आपकी क्या आपकी भी लगेगी Where is the CR? Call the CR also. CR, GR, everyone come. जल्दी आओ बेटा. Alright बेटा. Talha, good morning बेटा. मलाइका नादर महक नदीम महरून निसा इलाही रवी मुकद्दस परवीन निम्रा महरीन नुसरत शफी राबिया नजीब नाज़िया कुमार फातिमा समाना इम्तियाज सना शीबा ताहिर इफ़त एहसन ज़ैनब मजनू आयशा शाह ठीक है Alright, हम शुरू करते हैं. ठीक है, मैं मजीद वेट नहीं करूँगी. अक्सर तमसील where were you in the morning class आपके फर्स्ट क्लास में आप नहीं थी यहाँ पे अपनी क्लास अटेंड नहीं की शुरू की today's topic is about polycythemia. ठीक है, it is also known as polycythemia or polyglobulia. ठीक है, is a disease state in which the hematocrit यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स की जो परसेंटेज है उनमें वो क्या हो जाती है is a disease. ठीक है, it can be due to increase in number of red blood cells, right, or that is absolute polycythemia, or to decrease in the volume of plasma, that is relative in polycythemia. ठीक है, so इसमें हमने देखा कि जो हेमाटोक्रिट है हमारा वो उसकी परसेंटेज जो है या तो वो बढ़ जाती है. ठीक है, हेमाटोक्रिट हमारी इसमें बढ़ जाती है. सो हमने देखा कि जो पॉलीसाइथीमिया है इसमें क्या होता है हेमाटोक्रिट यानी कि वॉल्यूम जो है रेड ब्लड सेल्स की दे आर एलिवेटेड. इट कैन बी और इसकी वजह क्या बनती है इट कैन बी ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स व्हिच इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट polycythemia or decrease in the volume of plasma, that is relative polycythemia. Alright, here you can see the diagram. आप ऊपर सबसे ऊपर देखोगे polycythemia. It is absolute and it is relative. If it is absolute, it can be increase in the red blood cells और उसकी वजह बन जाती है absolute में it can over transfusion की वजह से भी हो सकता है. It can be because of primary and secondary. In primary, you will see myeloproliferative disorder, that is polycythemia vera, and secondary is decreased oxygen या altitude calcium.
ठीक है। एंड रिलेटिव में यू कैन सी द जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। Causes can be primary is polycythemia, inherited or acquired problem with red blood cells production leads to polycythemia। दो मेन कंडीशंस हैं जिसको उसमें बताया कि two main conditions that belongs to where is my mic? Okay, yeah, ठीक हो गया। So two main conditions हैं that belongs to this category are polycythemia vera और polycythemia vera। ठीक है। एंड प्राइमरी फेमिनल जो है एंड कंजेनिटल polycythemia is FPFCP। ठीक है, ये सारे उसके छोटे टर्म्स हैं। ओके, the next polycythemia vera is related to genetic maturation in the JAK2 genes, which is thought to increase in sensitivity of bone marrow cells to EPO, resulting in increased red blood cell production। ठीक है। Level of other types of blood cells जो कि white blood cells and platelets हैं, ठीक है, are often increased in this condition। किसमें? Polycythemia vera में। ठीक है। प्राइमरी फेमिनल जो है कंजेनिटल पॉलीसाइथेमिया वीरा इज ए कंडीशन रिलेटेड जो है वो EPOR जीन्स है। ठीक है। एंड कॉजेज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड cells in response to EPO। Now let's see what this EPO tells us about। EPO What is EPO stands for Exclusive Provider Organization Plan। Okay, EPO or erythropoietin receptor। EPOR is erythropoietin receptor। ठीक है। Increase in the that production of red blood cells in response to erythropoietin EPO। सिम्टम्स में आ जाएगा easily bruising।
ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आसानी से आपको ब्रूजेस नजर आराम से ब्लीड कर जाते हैं, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, पोटेंशियली लीडिंग टू हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड क्लॉट्स इन द लंग्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सारी चीजें क्लॉट फॉर्मेशन सर्कुलेशन में आ जाता है। देन बोन एंड जॉइंट पेन है, हिप पेन है, रिप पेन है, ठीक है, जहाँ कहीं भी क्लॉट अपना जगह रोक लेता है तो वो वहाँ पे क्या करते हैं अपना पेनफुल हो जाती है एरिया, ठीक है। देन बोन एंड जॉइंट में बताने के बाद हेडेक है, इचिंग आफ्टर टेकिंग अ शावर और बाथ, पोस्ट बाथ प्यूराइटिस है, नहाने के बाद वो ज़्यादा जब खारिश वगैरह हो रही है तो जहाँ से भी थोड़ा सा खारिश करते हो वहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा क्या हो जाता है, नील पड़ जाता है, थकावट है, डिजीनेस है, एब्डोमिनल पेन है, ठीक हो गया। The mainstay of therapy जो है वो for polycythemia vera remains phlebotomy, ठीक है, bloodletting, and the goal of phlebotomy is to keep the hematocrit around 45% आपने रखना है और 42 women में रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा और या कम आप करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। And then what else? Initially, it may be necessary to do phlebotomy every 2 to 3 days and remove 250 to 500 milliliter of blood each session. Once the goal is reached, maintenance phlebotomy can be performed less frequently. ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि एक मिनट, ओके, ठीक हो गया। phlebotomy क्या है? इट्स अ सर्जिकल, ही सर्जिकल नहीं, डी है, DH। It's the, not he. The surgical opening है, ठीक है। Okay, the surgical opening of or puncture of a vein in order to withdraw blood, to introduce a fluid or histologically when letting blood. So उसमें क्या होता है कि इसमें आपका वो ब्लड ड्रॉ कर लेते हैं, ब्लड लेटिंग, ठीक है। एंड गोल है कि आपका हेमाटोक्रिट बराबर रखना है। अब शुरू में वो क्या करते हैं कि वो आपका 2 से 3 दिन तक ऐसे ही 250 से 500 ml जो है ब्लड हर सेशन में वो क्या कर देते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं उस वक्त तक जब तक आपका क्या कहते हैं जो ब्लड का जो परसेंटेज है वो नॉर्मल ना हो जाए, फिर उसके बाद कम कर लेते हैं, ठीक हो गया। सो दैट्स द इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ये है। नर्सिंग डायग्नोसिस आपको पता है कि ये आपका शुरू का जो है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, फटीग, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज,
इनफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन है, इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन है। ये सारी चीजें जो है उन्होंने बताया कि ये आप क्या करोगे, शुरू का है ना, एज रिलेटेड टू पॉलीसाइथीमिया वीरा या पॉलीसाइथीमिया, जो भी आपने लिखना है उसका ये बन जाता है। और क्या कहते हैं, एज एविडेंस पाए आप तो बता सकते हो कि ब्रूजिंग है, जो कुछ भी है। ठीक है, अफसर फरवा, आप सुबह की क्लास में नहीं आई और आप भी नहीं आई। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन में आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे उसके रेस्पिरेटरी स्टेटस को देखते हुए, ताकि पता रहे कि बीच में कोई एम्बोलिज्म तो नहीं आ रहा। ठीक है, वाइटल साइंस को आप देखोगे, फिर देखोगे कोई साइंस ऑफ हेमरेज तो नहीं है। फिर आप असेस करोगे उसके कार्डियोवास्कुलर स्टेटस को टू डिटेक्ट एनी एरिथमियाज या एमआई। देन रिड्यूस द फिजिकल एक्टिविटी, प्रोवाइड बेड रेस्ट अपने पेशेंट्स को देने, क्योंकि हल्की सी भी चोट उनको एकदम नीला पड़ जाएंगे, वो नील पड़ जाएंगे। ठीक है क्या? देन मॉनिटर लेबोरेटरी वैल्यूज को आपने जरूर मॉनिटर करना है। एंड देन बैलेंस डाइट आपने देना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में, एक ही दफा में बहुत सारा खाना नहीं दे देना कि पेट भर के खा लो, नहीं, पेट भर के खाना नहीं देना उनको खाने के लिए, आपने उनको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देने हैं। ऑक्सीजन आपने प्रोवाइड करना है, क्योंकि उनका जो पल्मोनरी सिस्टम है इट्स नॉट वेरी गुड। देन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर आपने मालूम करके रखना है। स्टूल, यूरिन, एमिसिस, कोई इसके बीच में कोई ऑकल ब्लड तो नहीं आ रहा है कोई, ठीक है। सो आपने उस बात का भी ख्याल रखना है। इन्फेक्शन के लिए, ब्लीडिंग के लिए, ब्रूजेस के लिए, डिक्रीज प्लेटलेट लेवल्स के लिए, ये सारा आपने उसके इंटरवेंशन में करना। Need to encourage fluids and administer IV fluids to replace lost fluid lost by fever and bleeding की वजह से आपने उसके फ्लूइड और आईवी फ्लूइड्स को मेंटेन रखना है, यानी कि अपने उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी रखना है। आपने अवॉइड करना है एस्प्रिन को या उससे रिलेटेड ब्लड थिनिंग ड्रग्स को, क्योंकि ये लोग चूंकि ब्लीड जल्दी आराम से कर लेते हैं, इसलिए आपको उनको एस्प्रिन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो इतनी जल्दी एकदम ब्लीड कर जाते हैं। सो ज़रूरी है कि आप उनको ख़ास ख्याल रखें इस चीज़ के बारे में। ठीक हो गया। फिर आपने देखना है आईएम इंजेक्शन को आपने थोड़ा सा रिड्यूस रखना है, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन आपने देना है। ठीक है, आईएम इंजेक्शन इसलिए क्योंकि आपने उसका जो हेमरेज की वजह से, ठीक है, अवॉइड टेकिंग रेक्टल थर्मामीटर टेम्परेचर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ टिश्यू ट्रॉमा। ठीक है, अब आप जो है रेक्टल टेम्परेचर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हो सकता है आप उसको अंदर से थोड़ा सा इंजर कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स एंड एक्सेसिव जो एक्सरसाइजेस हैं उनसे भी आपने इनको अवॉइड कराना। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी क्या होगा, कहीं वो ब्लीड ना कर जाए, जो चोट ना लग जाए, स्पोर्ट्स में उनको चोट ना लग जाए, गिर भी गए तो उनको चोट लग सकती है। ठीक है, थोड़ी सी दब और वो एकदम टिश्यू में उसकी ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, वी डोंट नो, राइट? सो नीड टू बी वेरी केयरफुल। Then comes the leukemia is a malignant disorder. Leukemia is a malignant disorder जो कि अफेक्ट करता है आपके टिश्यू फॉर्मेशन को, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज को। ठीक है,
of the bone marrow, lymph system, and spleen. Okay, and it can occur in all age groups. में किसी भी age groups में भी ये हो सकता है. Result is an accumulation of dysfunctional cell because of loss of regulation and cell division. Fatal if untreated. अगर आपने इसको treat नहीं किया तो मौत भी वाक़या हो सकती है. Progressive and then often thought of as a childhood disease. ये ज़्यादातर समझा जाता है कि ये बचपन की बीमारी है. ठीक है. Number of adults affected with leukemia is 10 times that of children. Leukemia की जो etiology फिजियोलॉजी है, नो सिंगल causative agent नहीं है उसका. Most from a combination of factors, genetic है, environmental influences है, उसकी वजह से ये जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है और environmental की वजह से भी वो हो सकता है. So it is not a single causative agent नहीं है इसका कोई भी. It is associated with the development of leukemia. केमिकल एजेंट हो सकता है, इसका कीमोथेराप्यूटिक एजेंट हो सकता है, वायरसेस हो सकता है, रेडिएशन हो सकती है, इम्यूनोलॉजिक डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकती है. इसकी क्लासिफिकेशन है, एक्यूट है. ठीक है. एक्यूट वायरस क्रोनिक में आ जाता है सेल मैच्योरिटी. एक्यूट में और क्रोनिक इसमें फिर सेल मैच्योरिटी में एक्यूट एंड क्रोनिक आ जाता है. एक्यूट में है क्लिनिकल proliferation of an immature hematopoietic cells and formation of blood or blood cells. ठीक है. Chronic mature forms of WBC onset is more gradual. Right? आराम से अपना उसका जो है मेच्योर फॉर्म्स ऑफ WBC जो है उसका ग्रेजुअल फॉर्म है. The nature में is nature of a disease onset. Type of blood cells है, white blood cells है, acute lymphocytic leukemia है, acute myelogenous leukemia है, also called acute non-lymphoblastic leukemia, chronic myelogenous leukemia, chronic lymphocytic leukemia. तो ये वो ब्लड जो टाइप वाइट ब्लड सेल्स के जो आगे उन्होंने एक्यूट और क्रॉनिक को उन्होंने डिस्क्राइब करके बताया कि ये वो टाइप्स हैं. सो माइलोजेनियस ल्यूकीमिया जो है वो प्रोलिफरेटिव ऑफ माइलॉइड टिश्यूज of bone marrow and spleen, and an abnormal increase in the number of granulocytes, myelocytes, and myeloblasts in the circulating blood. ये उसने उसका बताया है माइलोजेनियस ल्यूकीमिया में. Myeloid tissues is biologic tissue, ठीक है, and with the ability to perform and in bones and is often synonymous with this. However, myeloid can also liver and spleen. Okay? And a myelocyte is a young cell चलो आगे.
खुद ब खुद ही हम कमरे से चले गए। ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं, ग्रेनुलोसाइट्स आर जो कैटेगरी है ऑफ ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स की, वो कैरेक्टराइज्ड होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, और दे आर आल्सो कॉल्ड polymorphonucleocytes because of the very varying shape और मुख्तलिफ shape है उनकी, ठीक है, of the nuclei, which is usually looped into 3 segment, ठीक है, 3 segments में वो आपको मिलेंगे, ठीक है। The myeloblast and the abnormal increase in number of granulocytes मैं कमरा छोड़ देता। ठीक हो गया, leukemia और increase in number of granulocytes। अच्छा, the fourth of all leukemias 85% of acute में आ जाएगा कि सीरियस इन्फेक्शन है, abnormal bleeding है। Second is uncontrolled proliferation of myeloblasts, hyperplasia of the bone marrow and spleen. Acute lymphocytic pneumonia, leukemia में क्या होगा? Leukemia in children जो है और adults में पाए जाते हैं और immature lymphocyte proliferative in the bone marrow में होते हैं। बाकी साइन सिम्टम्स में अपीयर रप्टली एकदम, ठीक है, फीवर के साथ ब्लीडिंग शुरू हो गई। सो साइन सिम्टम्स क्या है कि एकदम अपीयर हो जाते हैं एंड इंसिडियस विद प्रोग्रेसिव वीक fatigue एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैनिफेस्टेशन जो है उसमें वीकनेस है और दूसरा आपको ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलेंगे। क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया में एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर neoplastic granulocytes in the bone marrow. They move into the peripheral blood vessels, massive number, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ज्यादा जो क्रॉनिक है ये ज्यादा पेरिफेरी की तरफ मूव करता है और अल्टीमेटली वो कहाँ पे इन्फिल्ट्रेट इन द लिवर एंड स्प्लीन। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स and the chromosomes abnormality that causes chronic myeloid leukemia, ठीक है। जेनेटिक मार्कर में हम देखते हैं क्रॉनिक में कि स्टेबल प्लस फॉलोड बाय एक्यूट एग्रेसिव ब्लास्टिक फेजेस में आ जाता है।
Production and accumulation of functionally inactive, but ये ज़्यादा इतना जो है इसकी जो प्रोडक्शन और accumulation है chronic lymphocytic leukemia की, वो क्या है mature but long lived mature appearing lymphocytes. जो बी सेल्स इन्वॉल्वमेंट है उसमें हम देख सकते इसके अंदर इसकी बी सेल्स जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट नजर आती है एंड देन लिम्फ नोड्स जो है वो आपको इनलार्ज और पैल्पेबल enlargement is not noticeable. Enlargement है उसकी lymph nodes की लेकिन palpable नहीं है, right? Noticeable नहीं है, sorry. ठीक है, so enlarged है लेकिन noticeable नहीं है. तो throughout the body, it increases incidence of infection की वजह से आपको ये lymph nodes अमूमन मिलेंगे गले के पास. ठीक है, लेकिन वो नोटिसेबल नहीं है, नजर नहीं आते हैं. वो हाथ लगाने से फील करने से फिर जाके कहीं मिलते हैं. ओके, CLL जो है इसका मतलब है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक निमोनिया. CLL इज रेयर. कॉम्प्लिकेशंस अर्ली स्टेजेस में तो रेयर है लेकिन डेवलप हो सकती है एडवांस स्टेजेस में, जिसमें आपको पेन होगी, हाथ लगाते पेन होगी और क्या, paralysis from enlarged lymph nodes causing pressure. Hairy cell leukemia. Hairy cell leukemia में क्या है 2% of adult leukemias. ठीक है, इसमें usually in male more than 40 years old. Chronic disease of proliferation. B lymphocytes जो है that infiltrates the bone marrow and liver. Hairy cell leukemia जो है cells have a hairy appearance. ठीक है, symptoms from splenomegaly, pancytopenia infection and cell vasculitis. Treatment में alpha interferon, antostatin, cladribine से ये जो चीजें हैं इसकी ट्रीटमेंट है जो कि दी जाती है इसमें. अनक्लासिफाइड ल्यूकीमियास में क्या करते हैं, सब टाइप कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड है. malignant leukemia and leukemic cell, lymphoid, myeloid and mixed characteristics. ठीक है, जो भी हमने भी पीछे पढ़े थे उसके characteristics वो बताया कि mix है. Then frequent these patients do not respond well to treatment. अब ये unclassified leukemia वो इतना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते, सारी बातें नहीं बताते हैं और उसकी प्रोग्नोसिस पुअर है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ल्यूकीमिया की क्या होगी, रिलेट टू प्रॉब्लम कॉज्ड बाय बोन मैरो फेलियर. ठीक है, बोन मैरो फेलियर है तो बोन मैरो फेलियर में क्या करेंगे, उसका पहले सिम्टम्स देख लो. उसमें वो बताते हैं कि इट्स ओवर क्राउडिंग बाय एबनॉर्मल सेल्स and then inadequate production of normal marrow element and anemia throughout thrombocytopenia decreases the number and function of WBC. ठीक है, ये उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है.
रिलेटेड प्रॉब्लम से अगर हम देखें तो वो कॉज करता है ल्यूकीमिक सेल इनफिल्ट्रेट पेशेंट्स ऑर्गन। अब ये कौन कौन से हैं इसमें? स्प्लीनोमेगाली, इनके आपकी स्प्लीन बड़ी हो जाएगी, हिपैटोमेगाली लीवर बड़ा हो जाएगा, लिम्फेडेनोपैथी है, लिम्फ नोड जो है वो है, देन बोन में बोन पेन है, मेनिंजियल इरिटेशन, oral lesions, क्लोरोमास। सर ये जो प्रॉब्लम रिलेटेड है वो उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको मिलेगी। अब जरूरी नहीं कि ये सारी इकट्ठी मिल रही हैं, और ये में से कोई एक हो सकती है। स्प्लीन एनलार्ज हो सकता है, आपका लिवर एनलार्ज हो सकता है, लिम्फ नोड्स आपके एनलार्ज हो सकते हैं, हड्डियों में दर्द होगी, सो फोर्थ। ठीक है। डायग्नोस्टिक स्टडीज में टू डायग्नोसिस एंड क्लासिफाई पेरिफेरल आप क्या करोगे? ब्लड इवैल्यूएशन, सीबीसी, बोन मैरो इवैल्यूएशन है आपके पास। देन यू नीड टू आइडेंटिफाई द सेल शेप एंड स्टेजेस, उसके सेल्स शेप, उसके सेल्स सब टाइप पता करोगे आप उसके क्या कहते हैं स्टेजेस के मुताबिक। मॉर्फोनिक है, हिस्टोकेमिकल है, इम्यूनोलॉजिक है, एंड ठीक हो गया। कोलैबोरेटिव केयर में आप क्या करोगे? गोल इज टू अटेन रिमिशन when there is no longer evidence of cancer cells in the body. Then chemotherapy treatment में induction therapy आ जाती है, जिसमें attempt to induce or bring remission, seek to destroy leukemic cells in the tissues and peripheral blood, bone marrow। ठीक है। आपने जो पहले तो आपने देखना है कि आपने सारी चीजों को किस तरीके से रिमिशन करना है, और फिर आपने देखना है कि किस तरीके से सीक्स टू डिस्ट्रॉय ल्यूकेमिक सेल्स को आप किस तरीके से डिस्ट्रॉय करोगे टिश्यूज के अंदर, पेरिफेरल के टिश्यू के अंदर, बोन मैरो, पेरिफेरल ब्लड वेसल, ब्लड में देखोगे, बोन मैरो में पता करोगे, और फिर वहां पे आप इसको ल्यूकेमिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का करोगे। एंड देन पेशेंट में बिकम क्रिटिकली इल। पेशेंट जो है क्या हो जाता है इस दौरान में बहुत सख्त के बीमार हो जाता है, आपको साइकोसोशल सपोर्ट की देने की जरूरत होगी। कीमोथेरेपी के एजेंट में आप क्या करोगे? इंटेंसिफिकेशन थेरेपी आप करोगे। इंटेंसिफिकेशन थेरेपी में क्या होगा? हाई डोज थेरेपी है में बी गिवन आफ्टर इंडक्शन थेरेपी। इंडक्शन थेरेपी के साथ साथ आप उसको क्या करोगे? सेम ड्रग एट द हाई डोज, हायर डोजेस एंड या फिर अदर मुख्तलिफ दवाइयों के साथ आप उसके डोज को बड़ा डोज दोगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी में ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे? 3 पर्पस है। एक तो आपने ड्रग का रेजिस्टेंस कम करना है, ड्रग की टॉक्सिसिटी को आपने कम करनी है by using multiple drugs with varying intoxicides, ठीक है। Then interrupt cell growth and multiple points in the cell cycle। ये सारा आपके वहाँ पे शौकत खानम में हो रहा था।
गोल है आपका इसके अंदर ल्यूकीमिया बोन मैरो एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में आपका गोल है कि टोटली एलिमिनेट ल्यूकीमिक सेल्स को अपने हर तरह हर हालत में खत्म करना है, एलिमिनेट करना है, निकाल देना है ये, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी with or without total body irradiation. तो ये आपका गोल होना चाहिए कि आपने हर हालत में उसको बॉडी में से एलिमिनेट करना है। Eradicate patient's hematopoietic stem cells, replace with those of an halamatched human leukocyte antigens. सिबलिंग जो है ब्रदर्स या सिस्टर्स जो कि हु शेयर्स एटलीस्ट वन ऑफ द सेम पेरेंट, जो कि कम से कम दोनों में से कोई एक पेरेंट है, ठीक है, वो आपका उसको HLA मैच्ड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एजेंट को रिप्लेस करते हैं ताकि किसी तरीके से उसका बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो सके, ठीक है। और वॉलंटियर है, आइडेंटिकल ट्विंस हो सकते हैं, पेशेंट्स ओन स्टेम सेल रिमूव्ड बिफोर। ओवरऑल गोल जो है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट की प्लानिंग में यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट विद द ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है, एक्सपीरियंस मिनिमल साइड इफेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिजीज एंड treatment. Feel hopeful and supported during the period of treatment. Replace and placement. ये उसी हालत में हो सकता है जब आपको उसके सिबलिंग में से कोई मिल जाता है, तो फिर ये आपको तसल्ली होती है, वरना नहीं, ठीक है। ये मेरी पता नहीं अकाउंट में many physical and psychological needs, उसमें वो great fear, family also need help, बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत है फैमिली नीड की। बैलेंस डिमांडिंग है, टेक्निकल नीड विद ह्यूमनिस्टिक केयरिंग अप्रोच। Nursing management में patient empowered by knowledge of the disease and treatment can have a more positive outlook and improve quality of life. Nurses faces special challenges when meeting the intense psychosocial needs of a patient with leukemia. Nursing management में ongoing care is necessary to monitor for signs and symptoms of disease, control or relapse. Teach patient a significant other delegates disease management, need for follow-up care, and when to seek medical attention. कब देखना चाहिए, ये क्या है, ठीक हो गया यार, ये बीच में इतने ढेर सारे फिजूल किस्म के। Okay, when to seek medical attention. नर्सिंग मैनेजमेंट में गोल फॉर रिहेबिलिटेशन में क्या करोगे, यू नीड टू मैनेज द फिजिकल, साइकोसोशल, सोशल, स्पिरिचुअल
और डिले इफेक्ट को आपने मैनेज करना है. देन यू नीड टू सपोर्ट द ग्रुप. Evaluation में you cope effectively with the diagnosis, treatment regimen, and prognosis. Attain and maintain adequate nutrition. Experience में no complications. Uh, the patient experience no complication. They feel comfortable and supported. So this was all about this leukemias. Okay. In the next chapter, we will study about the what is this lymphoma. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे लिम्फोमा. अभी मैं आप लोगों की लगाती हूँ अटेंडेंस एंड देन मारिया अब्दुल्ला, नफीसा, मारिया. अब भाग भाग के लोग अपनी अटेंडेंस कर रहे होंगे. राबिया आप अपनी सुबह की क्लास में कहाँ थे? ये एक दफा लगा लो तो फिर मैं बाद में करती हूँ. तुम लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया. जॉन सारी क्लास में पता नहीं किधर था, अभी हाजिरी लगाई है. इस सायरा को क्या हो गया? सायरा मुंशी क्यों नहीं आ रही आजकल? आ गई, नजर आ गई. बिनिश नहीं आ रही है. फैसल सुबह की क्लास में अटेंड करके गायब हो गया और फिर दोबारा नहीं आया.
22 out of 25. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. My homework cell. Okay. Next is Fatima. रसल भी आ गया कहीं से उड़ता उड़ता। हो गई बेटा सनानाज, आपकी हो गई अटेंडेंस। 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 and 25 पूरे। ओके बेटा, मैं बंद करती हूँ, ठीक है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिम्फोमास पढ़ेंगे, ठीक हो गया। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।